Good afternoon, everyone, and welcome back to Devdeep classes once again for new videos and contents regarding different subjects of the respective classes. Now, those of you who don't know me, my name is Devdeep Bose. I am a faculty of computer science, but I do teach other subjects that are enlisted below. If you want to subscribe to my channel, please do hit the bell icon and do subscribe to my channel. I place to come up with new interesting videos of different subjects. So today we'll be discussing about a subject of class 12, that is English core. So on store for us today we have English course topic related to the book Vistas, and the chapter that we are discussing about today is the third level written by Jack Finney. Okay, now the weightage of this chapter as per CBSE perspective is 5 to 8 marks of questions you can come from this particular chapter. Okay, now this is a very interesting chapter in the perspective of English literature because this is an unusual chapter because this chapter deals with time travel. ठीक है, समय के पास जाने के जो राज है, जो हम बोलते हैं कि समय के ऊपर तैरना, या आप बोल सकते हैं समय के अनुसार किसी पुरानी दुनिया में जाना. This is what time travel is all about. So this chapter deals with time travel, and that brings us quite interesting about this chapter. Now, Jack Finney has always given his expertise in writing sci-fi stories along with lifestyle stories. He's been working at an advertisement agency, working at the different newspapers, and he has earned quite a bit of reputation in giving his expertise in the sci-fi stories. So one of the stories he has written here that we have in store for you today, that is the third level. Okay, now the story is based on, I'll just show you the picture here. Story is based here on Grand Central Station. Grand Central Station is one of the famous stations of United States of America, located in New York. Okay, so let us first understand the theme of the story. The theme is basically about time travel into the enclaves of Grand Central's third level. But there is a mock situation here. The story deals with escapism of psychological refuge. मतलब मान लीजिए कि ये जो कैरेक्टर, जो मेन कैरेक्टर था इस स्टोरी में, दैट इज चार्ली, इट वाज बेसिकली द स्टोरी इज सेट ऑन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर टाइम पीरियड. ठीक है, कि 1920s 27 के आसपास. तो इस टाइम में फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ग्रिप में देयर वाज ह्यूज डिस्ट्रक्शन of different places. So war was on its peak here. So at that time people were not in good shape of the economy, so they wanted a very peaceful life, not a life that is filled with war and any form of chaos. तो ये एक दुनिया इमेजिन करना शुरू करता है. ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में दो स्टोरेज होते थे, फर्स्ट लेवल एंड सेकेंड लेवल. ही इमेजिन्ड अ थर्ड लेवल बाय विच ही हैड टू गो टू एन town that he had wanted to visit for a long time along with his wife. वो अपने पत्नी के साथ वो टाउन को विजिट करने का बहुत दिनों से उनका इच्छा था, जो नाम था जिस टाउन का गेल्सबर्ग. ठीक है, लेकिन हम ये स्टोरी में देखेंगे कि वो ऐसे दौर में पहुंचते कि 1894, जहां पे वर्ल्ड वॉर का तो कोई सीन ही नहीं था. पीपल हैड अ वेरी पीसफुल लाइफ एट दैट पर्टिकुलर टाइम. ठीक है, तो ये स्टोरी में हम लोग मेन थीम यही है कि पीपल वांट अ प्लेजेंटफुल पीसफुल लाइफ, एंड फॉर एस्केपिंग इनटू अ पीसफुल लाइफ दिस स्टोरी आल्सो डील्स विद साइकोलॉजिकल रेफ्यूज फ्रॉम द हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ. एक साइकोलॉजिकल रेफ्यूज यानी कि हम अपने दिमाग को एक ऐसे दुनिया के ऊपर लेके जाना चाहते हैं जो बहुत ही स्थिर है, जिसमें शांति है. तो हम वो कैरेक्टर ऐसा ही दुनिया को इमेजिन करता है. बाद में हम देखते हैं कि उसका इमेजिनेशन भी किसी हद तक सही हो जाता है जब उनके अपने मित्र जो है साइकियाट्रिस्ट सैम वाइनर, वही गेल्सबर्ग में पहुंच जाते हैं 1894 के टाइम पीरियड में. ठीक है, तो एकदम डिटेल में चैप्टर को देखते हैं. द स्टोरी बिगिंस इन अ मॉक सीरियस मैनर. मॉक सीरियस यानी अनयूजुअल मैनर में. चार्ली इमेजिन करता है कि न्यूयॉर्क ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में 3 लेवल है, बट एक्चुअली में कितना लेवल्स है उसमें? सिर्फ 2 लेवल. ठीक है,
तो एक्चुअली में कितना लेवल्स है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में? हम देखते हैं कि सिर्फ 2 ही लेवल है, ठीक है। नाउ चार्ली हैड लॉस्ट हिज वे कपल ऑफ टाइम्स। ये पहली बार नहीं है कि चार्ली इमेजिन कर रहा है कि न्यूयॉर्क ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में 2 नहीं 3 है। ही हैड वंस विजिटेड अ होटल, वो एक होटल को विजिट किया था जिसका नाम है रूजवेल्ट होटल, और उसके लॉबी तक जाते हुए वो पहुंच गया किसी ऑफिस के बिल्डिंग में। तो ऐसा टेलीपोर्टेशन या फिर आप बोल सकते हैं कि टाइम ट्रेवल उसके साथ पहले भी हुआ है। तो इसका मतलब ही हैड दिस इल्यूजन दैट ही इज ट्रैवलिंग फ्रॉम वन स्पेस टू अनदर। वो एक उनका एक वहम होता था कि वो एक स्पेस से दूसरे स्पेस तक वो ट्रैवल करते रहते थे, ठीक है ना। तो यही इधर इस स्लाइड में यही कहा गया है कि एक बार उनके साथ वही हुआ था कि वो रूजवेल्ट होटल के लॉबी से ही हैड मूव फ्रॉम रूजवेल्ट होटल्स लॉबी टू दैट ऑफ ए ऑफिस बिल्डिंग, ठीक है। बट एक दिन जो मेन कहानी जो है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के ऊपर बेस किया हुआ है। तो चार्ली एक क्वाइट कॉरिडोर की तरफ पैदल चलता गया, ठीक है। क्वाइटली वॉकिंग टुवर्ड्स अ क्वाइट कॉरिडोर, ठीक है। उसके ऊपर एक आर्च था और काउंटर्स एंड ट्रेन गेट्स, बट वो आर्किटेक्चर उस शताब्दी का नहीं था जहां पे चार्ली बिलोंग करता था। वो कुछ 1800s का लग रहा था। और जब वो ऐसे ही मतलब ही वॉज टेकिंग अ राउंड ऑफ द स्टेशन, वो स्टेशन का एक चप्पा चप्पा घूम रहा था, अचानक उसके पास उसका नजर गया एक न्यूज़पेपर के ऊपर, ठीक है। दैट न्यूज़पेपर वाज ऑफ अ वेरी एस्टीम्ड न्यूज डेली, दैट इज द वर्ल्ड। और वहां पे डेट देख के चार्ली चौंक गया। तो मैं तो इस शताब्दी में नहीं हूं, फिर क्या होगा। तो पेपर में लिखा हुआ था डेट जून 11, 1894। अगर आप गौर कर रहे हैं देखिए जून 11, 1894 कौन सा न्यूज़पेपर में दिखा गया था? द वर्ल्ड में, ठीक है। सो वो टिकट विंडो के तरफ अब जब गया, ठीक है, ही वांटेड टू बाई 2 टिकट्स फॉर गेल्सबर्ग कहां पे था? इलिनॉइस काउंटी में। तो जब अभी देखिए वो एक अलग टाइम पीरियड में आ गया है, ठीक है, इज इन अ डिफरेंट टाइम पीरियड नाउ। उसके पास जो करेंसी था वो करेंसी तो चलेगा नहीं, तो वो गया करेंसी एक्सचेंज करने के लिए। बट व्हेन ही केम बैक टू बाय द टिकट्स ही कुड नॉट फाइंड द थर्ड लेवल अगेन, और वो वापस अपनी दुनिया में पहुंच गया, ठीक है। सो द टाइम पोर्टल or the wormhole we could say no longer existed. He was back square in his home, ठीक है। He could no longer find the third level that would take him to Galesburg, Illinois in the late 1890s. नाउ चार्ली क्यों इतना गेल्सबर्ग के ऊपर ऑब्सेस था? क्योंकि वो अपने पत्नी लुइजा को लेके वो सीनिक टाउन को बहुत ही हैड अ ड्रीम बेसिकली ऑफ टेकिंग लुइजा टू गेल्सबर्ग बहुत ही शांति प्रिय टाउन था, जहां पे जब वो इमेजिन किया होगा कि उधर सब लोग बैठ के लॉन में आराम से आराम कर रहे हैं, ठीक है, मर्द लोग सिगार पी रहे हैं, ठीक है। सो इट वॉज क्वाइट अ प्लेजेंटफुल अनलाइक द मोनोटोनस लाइफस्टाइल दैट वी सी इन न्यूयॉर्क टुडे। सो अ वेरी पीसफुल लाइफस्टाइल। सो उसने क्या किया, नेक्स्ट दिन वो अपने लंच के टाइम पे ही वेंट एंड एक्सचेंज सम नोट्स, ठीक है। एंड नोट्स एक्सचेंज करते हुए उसको कितना मिला? $100। बट चार्ली वॉज कॉन्फिडेंट कि मैं तो $100 में आराम से कटा लूंगा कुछ दिन यहाँ पे, बिकॉज गेल्सबर्ग वॉज वेरी चीप टाउन एट दैट पर्टिकुलर टाइम, ठीक है। तो गेल्सबर्ग क्योंकि बहुत ही चीप था, वो कॉन्फिडेंट था कि वो इजीली समय बीत जाएगा उसका उस टाउन में, ठीक है। तो ये पे लिखा हुआ है। बट जो हुआ था कि गेल्सबर्ग को वो कभी ढूंढ ही नहीं पाया, क्योंकि when he was about to buy the ticket he could not find the third level. यहां तक ही सिनेरियो था। वो न्यूज़पेपर के बाद वो गेल्सबर्ग पहुंच गया था, गेल्सबर्ग के सराउंडिंग्स के ऊपर उसका नजर था। he was seeing the pleasant life over there, but he also went to exchange the money. उसको $300 भी मिल गए, ठीक है। $100 का 3 नोट, तो $300 टोटल। तो इस कॉन्फिडेंट था कि मैं इजीली इधर वक्त बिता लूंगा। बट द मोमेंट
decided he could no longer find the third level, that is the particular portal, and he came all the way back to square, that is the particular place home. Now Charlie wife was totally worried about, ये चार्ली का रवैया को लेके बहुत worried थे लुइसा. तो कि ये वरी होने का कारण क्या था? ये कारण मेनली ये कारण था कि लुइसा वेरी वेल न्यू, लुइसा को पता था कि ये थर्ड लेवल बोल के तो न्यूयॉर्क ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में कुछ भी नहीं है, सिर्फ 2 माला ही है, तो 2 लेवल्स ही है, तो ये शायद फिर से ही इज लूजिंग इट ऑल ओवर अगेन, वो फिर से संकी हो रहा है. ठीक है, तो ही वांटेड टू एक्चुअली विजिट, मतलब रेकमेंड किया था कि तुम सैम, यानी कि उसके दोस्त साइक्रियाट्रिस्ट सैम वेनर को तुम फिर से मीट करो. चार्ली तब बोला मैंने तो सैम को पहले उसके बारे में बताया, आई हैव टोल्ड हिम द एंटायर स्टोरी. बट फिर अचानक एक खबर आया कि सैम भी बहुत दिनों से लापता है. सैम की पत्नी सैम को ढूंढ रही थी. ठीक है, कि सैम कहां है उसका पता नहीं चल रहा है. एंड देयरफॉर इन ऑर्डर टू एड सैम्स वाइफ, चार्ली एंड चार्लीज वाइफ लुइसा ऑल्सो वेंट फॉर सर्चिंग सैम. ये करते करते एक दिन चार्ली को ये पता चला कि अपना ही एक स्टैम्प कलेक्शन था चार्ली के पास. ठीक है, तो ही वॉज ऑलरेडी डिस्कसिंग अबाउट हिज डिफरेंट स्टैम्प कलेक्शंस. ठीक है, तो स्टैम्प कलेक्शन डिस्कस करते करते उसके पास एक he was basically saying that I've got huge amount of stamp collection postmarked with President Garfield. Suddenly he came across an envelope that was belonging to Charlie's grandfather. ठीक है, जो गेल्सबर्ग में रहते थे. इसीलिए चार्ली का गेल्सबर्ग के ऊपर बहुत ही एक सॉफ्ट कॉर्नर था, क्योंकि उनको पता था कि कैसा लाइफ स्टाइल है. शायद वो अपने दादाजी से सुने हैं कि कैसा लाइफ स्टाइल हुआ होगा. तो उसके पास एक एनवेलप आया दैट वाज एड्रेस टू चार्लीज ग्रैंडफादर. जब वो एनवेलप खुला, एक्चुअली वहां पे नाम किसका था? सैम वाइनर. अब चार्ली बहुत ही वाज सरप्राइज, आश्चर्य हो गया, सैम कहां से टाइम में पहुंच गया. तब सैम ने उस लेटर में लिखा है कि भाई मैंने अपना ही कुछ न्यू जो करंट करेंसीज है उसको एक्सचेंज करके $800 वर्थ करेंसी जुटा लिया है उस जमाने का, और वहां मैंने एक अपने लिए एक बड़ा सा जमीन खरीद लिया जहां पे मैं अपना मतलब हे फीड एक्चुअली कैटल फीड होता है, तो कैटल फार्म और ग्रेन फार्म मैंने खरीद लिया है. आई एम हैविंग अ वंडरफुल लाइफस्टाइल ओवर देयर. तो एंड में ऐसा ट्विस्ट आता है कि जो चार्ली का कल्पना है वो शायद सच ही प्रमाणित होता है, कि ऐसा शायद एक वर्म होल है जिससे सैम मोटिवेट हो गया. सैम ने उस वर्म होल या फिर वो टाइम पोर्टल को ढूंढ के निकाला. उसके बाद वहां पहुंच के अपना जो करेंसीज था उसको उसने एक्सचेंज किया और बाद में ये लेटर चार्ली के लिए लिखा. एंड दैट वाज बियरिंग अ स्टैम्प दैट बिलोंग टू चार्लीज ग्रैंडफादर विच सजेस्ट द टाइम पोर्टल. ठीक है, नाउ आई होप यू हैव अंडरस्टूड द एंटायर लेसन. ना यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है. तो व्हाट डज द थर्ड लेवल रेफर टू? थर्ड लेवल ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का जो थर्ड माला है, थर्ड स्टोरी को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, और बेसिकली ये थर्ड लेवल बोल के कुछ था ही नहीं. ठीक है, बिकॉज ये थर्ड लेवल एक इमेजिनेशन है जहां पे वो इमेजिन कर रहा था कि वो एक 1890s के इमेजिनरी दुनिया में पहुंच गया था जहां पे लाइफ बहुत ही सरीन और सिंपल था. Would Charlie ever go back to ticket counter on the third level to buy tickets? ये आपको पता ही है, he never went back to the ticket counter to buy tickets for Galesburg, क्योंकि वो ओल्ड स्टाइल करेंसी चाहिए था वो टिकट खरीदने के लिए. The moment he was about to exchange the money and he came back, but he could not find the third levels portal. ठीक है, यही हुआ था यहाँ पे exactly. Third level is a medium of escape for Charlie. Of course, Charlie was living in a life of fear, insecurity, but वो 1894 का lifestyle was quite pleasant.
there was serenity, there was peace over there. So therefore, it is definitely an escape mode of escapism for Charlie. What do you infer from Sam's letter to Charlie? That Sam had reached the particular time portal. Okay, Sam had reached the particular time portal and finally he has reached Galesburg, और जहाँ पे वो 1890s के जो टाइम पीरियड है वहां पे रीच करने के बाद वो अपने लिए जो मॉडर्न करेंसी था वो मॉडर्न करेंसी को एक्सचेंज करके ही हैड बॉट $800 बाय विच he was able to buy some land for himself where he would do farming in order to lead a proper life. ठीक है, सो ये सब क्वेश्चंस आपको पढ़ना है. ठीक है, इसमें अगर कोई भी किस्म का डाउट हो तो आप प्लीज रेफर बैक कीजिए. ठीक है, एंड वीडियो इफ यू आर इन यूट्यूब प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वीडियो एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग इट. ठीक है, if you download it, it would be more simple for you to take the screenshot. So I would like to end my class here today. If you have any doubts today, please get back to me on the the YouTube comment section. Apart from, there is an important information for the students of Devdeep classes online, that today the very same chapter I will be teaching you online live classes from 6 p.m. today in the evening. So I hope you tune in for the live class. This is particularly meant for my students of Devdeep classes. Okay, those who are only enlisted to the Zoom app for which I am teaching online. Okay, so please tune into that class, and if you have any particular doubts, you can get it clear to me by either referring to WhatsApp, and for my YouTube viewers, you can reach out to me at my WhatsApp number or at the comment section of YouTube. So I hope you have liked the lesson, and at the end I have to tell you, I hope you have understood this excellent lesson of escapism related to time travel. Now in this modern world, we really need it, that if we could go back to our childhood days, it would be really great fun. So this chapter deals with the rough escapism from the monotonous life that we are leading to a more peaceful life. I hope you have liked the lesson. So if you have liked the lesson, subscribe karna mat bhuliye. Please do subscribe to my channel for latest videos of any particular subjects of different classes, and I pledge to come up with more interesting chapters and its content of different subjects. Thank you all for tuning in today.